Hi guys, welcome to another podcast for Law CT 5 years examination, and today we have Harsh Bagul from Mumbai, and he scored 120 marks out of 150. Hi Bagul, Hi sir, how are you? I am fine, and first of all congratulations for 120. Thank you sir. So Mumbai, you are MS student, so mostly GLC and या तो फिर ILS. Which college you are looking? Actually I'm hoping for GLC cause ILS तो मिल जाएगा but लाइफ में चीज़ों के लिए फाइट मारने में मजा आता है तो आई एम होपिंग फॉर GLC. GLC. Okay, great. So mostly 275 is the rank. Yes sir. सो जीएलसी या तो फिर आईएलएस. मोस्टली आईएलएस तो फॉर श्योर है. जीएलसी में जस्ट लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटी है. व्हाट इज द नंबर ऑफ Yes सीट sir. इन जीएलसी? Actually it's 180 for Maharashtra students and total 240. टोटल 240. ओएमएस भी है. Yeah. ठीक है. ओके, सो लेट्स कैप राउंड स्टार्ट एंड सी कौन से लिस्ट में अपना नाम आता है. Yes sir. ओके. बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर जीएलसी जाए कि आईएलएस जाए, कौन सा वाला बेटर है. कंपैरिजन, उसके कंपैरिजन को लेके देयर इज ऑलरेडी वीडियो वी हैव मेड, सो यू कैन चेक इट आउट. Yeah. सो बट मेरे हिसाब से दोनों ही अच्छे कॉलेजेस हैं. सो कोई भी Yes मिल sir. जाए तो यू शुड गो फॉर इट. एंड ऑलराइट, सो बगुल जॉइंड अस फॉर सीटी हाइस्ट 10 days का वर्कशॉप वी स्टार्टेड. सो वो वाला और जंबल मॉक प्रोग्राम. So basically he joined us for the online all these programs and अच्छे से preparation किया and hit 120 marks. So okay, Harsh, want to understand your academic background first of all, और law ही करना है ऐसा दिमाग में कब आया? लॉ एक्चुअली करना ये लास्ट ईयर आया दिमाग में All right. जब मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया एंड ऑल दैट तो मैंने Okay, you have सोचा taken कि drop. या Okay. तो मैंने सोचा कुछ क्रिएटिव करते हैं हटके अलग से. तो मेरे सामने मैंने सोचा और दो करियर थे, एक लॉ एंड सेकंड वाज जर्नलिज्म. Okay. सो लॉ सीम्ड मोर इंटरेस्टिंग दैट वे. Okay. सो देन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर लॉ. Mm-hmm. देन आई हैव गिवन अदर एंट्रेंसेस आल्सो लाइक क्लैट, एलिट. So what happened to those exams? Those were good, they did good, I did good in that, but I was hoping for GLC since the Okay. very beginning of preparation. Okay. So So I वहाँ decided to go for CET. okay, so CLAT में rank वगैरह क्या थी? Yeah, it was good. CLAT and elite. I don't remember the number actually, but I did good in those two exams. Okay, कोई एनालिस्ट मिला था एडमिशन के लिए? Actually, I didn't enroll myself for the counseling session. So Okay, fine. Okay, so for 1 year drop you have taken, then only prepare for the MSCT exam and finally 120 score, right? yes, sir. Okay, and how you got connected with Manure? I used to watch your videos on YouTube about the exams and all stuff. So I thought they were useful, and you said you and your faculties give all the exams. So that way, I thought it must be useful, and you are attached to those exams practically. Yeah, So that's why I correct. decided to go for the CET high score. Okay, great. So does it help you or not? Yeah, it did good. अच्छा, पक्का? Yes, sir. Okay, so coming to the preparation part, what was your daily routine for the preparation with regards to all the section? लॉजिक, मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड लीगल. तो ऐसा कुछ रूटीन डिसाइड था? मॉर्निंग में जीके करेंगे, फिर मैथ्स, फिर इंग्लिश, ऐसा कुछ था? मैंने एक्चुअली लास्ट अक्टूबर 1 to October 7 एकदम अच्छे से प्रिपेयर किया एंड इन दोस 7 days इट वाज just the normal. I actually also got your handouts, the business and GK, all static GK. I Okay. went through all that. Mm-hmm. They were good, and English was also good, that vocabulary and grammar part, Mm-hmm. and nothing else actually. Just read it all and went through it. I All had no right. strategy, to be honest. मतलब जो अच्छा लगा वो टॉपिक उठाया, पढ़ लिया. That's Right, it. this is how. But ideally one should have a proper roadmap, proper strategy if you are preparing Yeah, and yeah, really want to yeah. crack with a good score. So थोड़ा सा strategy बना के चलो. Okay, Yes. so want to understand Harsh, how, if you compare your maneuver mock test और real exam जो था आपका, क्या differences मिला? जंबल मॉक इस साल तो पैटर्न चेंज ही हुआ था, जंबल हो गया था.
तो कितना हेल्पफुल था मॉक टेस्ट और क्या चेंजेस एक्सपीरियंस कैसा था मॉक को लेके और रियल एग्जाम जब भी लिखा तो? जंबल मॉक टेस्ट में तो हेल्प किया है एक्चुअली, मतलब उसने वो एक्सपीरियंस दिया कि रियल एग्जाम कैसे फेस करना है, कि ओके। ऊपर जंबल क्वेश्चंस आ सकते हैं ऊपर नीचे कोई भी टॉपिक से, वो एक। एंड द एग्जाम तो इस साल बहुत ही इजी आया था, मतलब द मॉक टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट कंपेयर टू द रियल एग्जामिनेशन। ओके। सो एग्जाम देने के बाद वो भी एक अच्छा फील आया कि चलो प्रिपरेशन अच्छा हुआ था। ओके। सो कौन सा मॉक इजी लगा कि रियल एग्जाम इजी लगा? रियल एग्जाम, ऑफ मॉक कोर्स। टफ लगा? हाँ। अच्छा। ओके ओके। सो व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, सो ऐसा कुछ सिटी हाइस में यू ज्वाइंड एंड वहाँ पे ग्रुप था पूरा, तो उनके हाँ साथ वो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हाउ आई मीन इट वाज हेल्पफुल कि ग्रुप स्टडी होती है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, हाँ हाँ हाँ। तो वो सब ऐसा कुछ किया था कि नहीं? वो हेल्पफुल था क्योंकि उस ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स और आपकी सपोर्ट टीम भी थी। सो वो दिन भर डाउट्स वगैरह क्लियर करते थे एग्जाम से रिलेटेड, की जो भी हो, मतलब सिलेबस रिलेटेड या फिर ऑफ द सिलेबस की डेट कब आएगा, क्यों बिकॉज एग्जाम ऑलरेडी बहुत पोस्टपोन हुआ था 3 अक्टूबर दिन 8 अक्टूबर। तो बीच में सपोर्ट टीम ने भी अच्छे से कोऑपरेट किया और स्टूडेंट्स वगैरह का डिस्कशन चलता था ग्रुप पे। सो इट वाज आल्सो हेल्पफुल कि लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट है, किस किस को क्या डाउट आते हैं, अपना प्रिपरेशन उस हिसाब से कहाँ तक आया है। ओके। So it all helped a lot. तो जितने भी एस्पिरेंट जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 2022-23 के लिए, उनको कोई टिप सजेशन देना चाहोगे? टिप्स की लास्ट मिनट पे प्रिपेयर मत करो स्टार्ट योर एक्चुअली। अर्ली प्रिपरेशन। सो आइडली पीपल स्टार्ट अर्ली, 11th में है तभी स्टार्ट कर देते हैं कुछ लोग, मतलब जब 12th में जाते हैं देन दे स्टार्ट, या तो फिर और जब 8-9 मंथ्स बचा होता है देन दे स्टार्ट, या तो 6 मंथ। उसके बाद तो सीधा 2-4 महीने ही बचते हैं क्योंकि बोर्ड भी आ जाता है, 12th का बोर्ड भी या यू हैव टू बैलेंस, तो फिर उसके बाद तो 1-2 महीना ही 3 महीना मिलता है, तो फिर डिफिकल्ट है थोड़ा सा अगर जीएलसी आईएलएस देख रहे हो एडमिशन के लिए तो। ओके। ओके। एनीथिंग एल्स? नथिंग सर, बस मतलब यही कि तीन चीजें, एक तो खुद का डेडिकेशन और पैशन होना चाहिए अंदर से, कि मुझे चाहिए जीएलसी या आईएलएस जो भी आपका ड्रीम कॉलेज हो वो। और दूसरा मतलब जैसे कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया ने बोला था कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, या क्या, जैसे कि आपने एग्जाम के पहले वीडियोस डाली थी कि मैथ्स ज्यादा आ सकता है, ये सेक्शन से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो बहुत हेल्प करता है, वो ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए, ताकि ऊपर का टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, और जितना भी टाइम आप पढ़े वो एकदम सही तरीके से यूटिलाइज हो सही जगह पे। So basically keep yourself prepared for all kind of a bouncers which you can expect in the exam. तो या कुछ भी हो सकता है, एंट्रेंस है, और ऐसा भी नहीं है कि वहां पे चांस ले सकते, बिकॉज एक बार गया एग्जाम तो 1 साल वेट करना पड़ेगा। एक साल सही है। सो दैट इज वाई प्रिपेयर विथ ऑल दी पॉसिबिलिटी कि पेपर एकदम टफ हुआ तो भी मैनेज कर लेंगे, इजी हुआ तो फोड़ के रख देंगे। यस सर। Okay. So that's all, guys. In this podcast, we'll keep on meeting in another podcast, and stay tuned till then. And whatever information you are getting from all these podcasts, kindly implement it. And yeah, that's all. So thank you, Harsh, coming and थैंक joining यू सर। and sharing your experience.